Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So today we'll start up of your English reader unit 6. Before we started the chapter 6, we have to do some exercise in unit 6. We have to read it about what we'll study in unit 6. Basically हम क्या पढ़ेंगे? So we'll study about in unit 6 enthusiasm. What is enthusiasm? A strong feeling of excitement. A strong feeling of excitement or interest in something and a desire to become involved in it. ठीक है, आपके अंदर कोई फीलिंग है एक्साइटमेंट की, आप बहुत एक्साइटेड हैं कुछ करने के लिए और आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं वो अपनी पूरी इंटरेस्ट से, ठीक है, इन समथिंग एंड डिजायर टू बिकम इन्वॉल्व इन इट, और उसके बाद आप उसमें इन्वॉल्व रहेंगे अच्छे से, तो दैट्स कॉल्ड एंथुसियाज्म. जैसे वी सेलिब्रेट दिवाली विद एंथुसियाज्म, वी सेलिब्रेट गणपति विसर्जन, वी सेलिब्रेट दुर्गा पूजा विद एंथुसियाज्म. इन महाराष्ट्र दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड एज अ लाइक great festival. In Sikhs, Guru Purab is celebrated at high peak. In ours, Punjabis, we celebrate Lohri with awesome things. So किसी किसी में क्या होता है, हर एक कास्ट में या कह लो जो कास्टिज्म डिवाइड है या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में कुछ कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जो बहुत एंथुसियाज्म के साथ मनाए जाते हैं. जैसे इन मॉमडन्स वी सेलिब्रेट ईद, इन क्रिश्चियंस वी सेलिब्रेट क्रिसमस डे 25th December with enthusiasm, with great interest, with great enthusiasm. Okay, why is enthusiasm important? Give your answer in the space given below. ठीक है, तो ये 2-4 lines I will tell you and remaining you will do yourself. Okay, why is enthusiasm important? क्यों important है enthusiasm? Enthusiasm is important in many things. Where in work. अगर हम काम में enthusiasm दिखाएंगे तो हमारा वर्क जो है वो बेस्ट होगा और अच्छा होगा, ठीक है. अगर हम लेथार्जिक काम करेंगे तो हमें कोई भी एनहेंसमेंट नहीं मिलेगा कभी भी अपने जॉब में. क्या है, हमें स्टार्टअप तो मिल जाएगा बट हम एक ग्रेट लेवल पे पीक पर नहीं जा पाएंगे अपने इंटेलिजेंस के थ्रू. सो we should show enthusiasm in our work with great diligence. Okay, in personal life also we have to show enthusiasm. If we show no enthusiasm in our personal life, so our personal life will get hell. Will not coordinate with our family members, with our husband, with our wife, with our spouse, basically with our children. So we have to show enthusiasm in the personal life also, है ना, and in relationship, and in our all kind of relationship with being a mother or a father or a grandmother or a grandfather or as a spouse, as a children, we have to show enthusiasm there also. In job we have to show enthusiasm again, ठीक है. In advance your career you have to make your career best through enthusiasm. ओके, आप enthusiasm दिखाएंगे तो आप अपने करियर में बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है. पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, अगर आप पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट रखेंगे अपने आसपास तो भी आप अपनी लाइफ में बहुत एनहेंस करेंगे, ग्रो करेंगे, ग्रोथ लेंगे. एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बनानी है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी मीन्स कि आप काम तो कर रहे हैं बट पूरे एंथुसियाज्म से नहीं कर रहे, बहुत अच्छे से नहीं कर रहे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, वहीं की वहीं रहेगी. बट आप इफ यू विल डू विद द फुल एंथुसियाज्म तो यू विल मेक अ पीक, आप एक हायर लेवल पे पहुंचोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी, ठीक है. इन इनोवेशन, अगर आपको कोई नए कार्य करने हैं, कोई इनोवेटिव कार्य करने हैं तो भी आपको विद एंथुसियाज्म दिखाना पड़ेगा. और अगर आपको अपनी जॉब में सेटिस्फैक्शन चाहिए
तो वहां भी आपको एंथुसियाज्म दिखाना ही पड़ेगा. सो इन दीज एरियाज यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट, योर डिजायर, बीइंग इन्वॉल्व्ड इन इट. ओके, सो what we have done with this unit startup only. We'll see you in the next class with the 6th chapter of this unit. ठीक है, this unit is about enthusiasm. और आप इसमें कुछ भी add on कर सकते हैं, कितनी भी lines, no problem. ठीक है, 5 lines I have written here and you can make it 5 more or whatever you want. 10 to 12 lines you can write in this para. Okay, so today we will continue with our 6th unit, 6th chapter. The unit is enthusiasm and the chapter name is Spring Festival. Spring Festival. Festivals. We know about festivals. We are Hindus, so we know about the festivals that we celebrate it with so much joy and enthusiasm. हमारे हिंदूज में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं और हम उन्हें टाइम टू टाइम सेलिब्रेट करते हैं और उस सेलिब्रेशन को हम इतने धूमधाम से करते हैं कि दैट इज सो वास्ट ऑन द ह्यूज लेवल. Okay, so here we will study about the Spring Festival. Spring Festival is Holi basically. Festivals are special days family and friends get together to celebrate and enjoy them. फेस्टिवल्स में हम क्या होते हैं, हम अपने फैमिली के साथ इकट्ठा होते हैं. ठीक है, अभी जैसे राखी है तो राखी में हम सब कलेक्टिवली इंजॉय करेंगे. सिस्टर्स ब्रदर के यहाँ जाएंगे, ब्रदर सिस्टर के यहाँ जाएंगे और राखी टाई करवाएंगे, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो इसमें क्या है, हम विद फैमिली इंजॉय करते हैं. वी टुगेदर विद अ फैमिली एंड एंजॉय वेरी मच इन एनी फेस्टिवल. We collected at one place. ठीक है, हम ऑल द टाइम अपने कामों में बिजी होते हैं, फिर कोई भी फेस्टिवल आता है तो हम एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं जिससे हम उसे एंजॉय कर पाए. ओके, सो विच फेस्टिवल डू यू लाइक द मोस्ट? आपको कौन सा फेस्टिवल पसंद है? एक्चुअली सबका फेवरेट फेस्टिवल होता है कुछ, जैसे मुझे आई लाइक दिवाली एंड होली ऑल्सो. सो व्हाट डू यू लाइक? आपको भी तो कोई फेस्टिवल पसंद होगा. ओके, we'll continue with the story. Anil said you are a snob. मिस्टर अनिल ने बोला कि तुम एक स्नोब हो, मतलब तुम बहुत प्राउडी हो. Why? I asked. मैंने बोला, राइटर ने बोला, नरेटर ने बोला, वो क्यों? Because you won't play होली, क्योंकि तुम होली नहीं खेलते. मतलब कोई बंदा होली कैसे नहीं खेल सकता? You want to shut yourself up in your house when everyone else is celebrating the coming of spring. I know you are afraid to spoil your clothes. जब सारे के सारे लोग घर से बाहर निकलकर होली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, स्प्रिंग सीजन आता है और तुम अपने घर में घुसे होते हो कि नहीं मैं होली नहीं खेलूंगा क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे क्लॉथ्स डर्टी हो जाएंगे. आई श्रग्ड माई शोल्डर्स टू लेट हिम नो दैट ही कुड थिंक व्हाट ही लाइक्ड. उसने ऐसे किया अपने शोल्डर्स को, जैसे हम कहते हैं ना, कोई हमारे बारे में कुछ कहता है तो हम कहते हैं ठीक है, मतलब आपको जो सोचना है वो सोचो. तो उसको लगा कि ऐसा कुछ है नहीं है, पर इसको जो सोचना है ये सोच सकते हैं अनिल को. यू आर अफ्रेड ऑफ योर पेरेंट्स दैट्स व्हाई इट इज, कंटिन्यूड अनिल. अनिल अभी भी चुप नहीं हुआ, वो आगे कंटिन्यू कर रहा था अपनी बात को कि तुम्हें अपने पेरेंट्स से डर है इसलिए तुम होली नहीं खेलते. तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें पनिश करेंगे रनिंग अराउंड विद द बाजार पीपल. मतलब जो जैसे सारे लोग हैं जो होली खेलते हैं, मजे लेते हैं, मस्ती करते हैं, उनके साथ अगर तुम होली खेलोगे जो जिसको तुम्हारे पेरेंट्स मानते हैं कि वो विचित्र टाइप के लोग हैं. ठीक है, विचित्र टाइप पीपल. तो अगर तुम उनके साथ होली खेलोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा. दैट्स वाई यू डोंट प्ले होली. आई थिंक दिस. बाकी क्या रीजन है पता चलेगा. तो दे बोथ बॉयज आर टॉकिंग विद ईच अदर. यू आर वेलकम टू थिंक सो. अनिल ने क्या बोला, वो नरेटर ने क्या बोला कि तुम्हें वेलकम है, तुम ऐसा सोच सकते हो, बिल्कुल सोचो. आई सेड कोल्डली, बहुत
नॉर्मल बिल्कुल ठंडे रवाब में मैंने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो सोचना है सोचो। अनिल हैड ऑफन टोल्ड मी अबाउट होली, इट वॉज नॉट मेयरली अ हिंदू फेस्टिवल ऑफ प्लेइंग विद कलर्स। अनिल ने मुझे होली के बारे में बताया था, ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं था कलर से खेलने का। जब मैन वुमेन चिल्ड्रन दे कलर डस्ट, कलर डस्ट मीन्स गुलाल, वो गुलाल से होली खेलते हैं। एंड वाटर ऑन ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर वाटर भी थ्रो करते हैं। व्हेन देयर वर सिंगिंग एंड शाउटिंग एंड द बीटिंग ऑफ ड्रम्स, जब वहां पर क्या होती है, सिंगिंग होती है, शाउटिंग होती है, बीटिंग ऑफ ड्रम्स होता है। इट इज ऑल्सो हेराल्डेड एज हिंदू न्यू ईयर, उसको क्या माना जाता है, हिंदू न्यू ईयर की तरह उसे माना जाता है। व्हेन नेचर इज बॉर्न अगेन, ब्लॉसमिंग आउट इन कलर एंड म्यूजिक। ठीक है, कलर और म्यूजिक हमारा निखर के आता है। न्यू कलर, न्यू म्यूजिक, न्यू लाइफ, नया नया कलर्स आते हैं, म्यूजिक आते हैं, लाइफ आती है। सीजन्स डाई, सीजन्स जाते हैं, सीजन्स नए आते हैं। ठीक है, एक सीजन खत्म होता है, दूसरा सीजन आता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा आता है। स्प्रिंग खत्म होता है, विंटर आता है, विंटर खत्म होता है, समर आता है। ठीक है, तो सीजन्स आते जाते रहते हैं। द कलर्स आर थ्रोन आर एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय इन न्यू स्प्रिंग टाइम। तो कलर्स क्या माने जाते हैं कि न्यू स्प्रिंग टाइम लाइफ में, और यंग लव मतलब आपस में प्यार का प्रतीक है। एक दूसरे को गुलाल लगाना, ठीक है, गले मिलना, स्वीट्स खिलाना, होलीज प्ले करना। तो होली फेस्टिवल हैड एन फैसिनेशन फॉर मी, मतलब मुझे बहुत ही पसंद है ये, मेरे लिए एक अच्छा सा ख्वाब टाइप है। बट अंटिल आई वॉज 15, जब मैं 15 साल का था, माई पेरेंट्स हु हैड बॉट मी टू इंडिया, वो मुझे इंडिया ले आए थे। पहले मैं इंडिया से बाहर रहता था। ठीक है, 2 years earlier when my father had taken a job with a new hydroelectric project, उन्हें एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में एक जॉब मिली थी नहीं। had not allowed me to take part in the celebration, उन्होंने मुझे कभी भी होली प्ले नहीं करने दिया। they were afraid I might get hurt in rough play or be lost in bazaars, उन्हें ये लगता था कि ये जो इतनी मैसी तरीके से होली प्ले करते हैं, मैं उसमें बहुत परेशान हो जाऊंगा या फिर मैं बाजार में खो जाऊंगा। I had stayed at home listening the drums, the songs and the inviting shouts of some of my school friends, मैं घर पर रहता था, ड्रम्स के म्यूजिक सुनता था, सॉन्ग सुनता था, और जो मेरे फ्रेंड्स मुझे इनवाइट कर रहे थे शाउट कर करके वो सुनता था। अनिल फादर केप्ट अ क्लॉथ शॉप इन द बाजार, अनिल के पापा की क्या थी, क्लॉथ की शॉप थी बाजार में, और वहीं से मैं उसे मिला था, वहीं वो मेरा फ्रेंड बना था। वैसे वो डिफरेंट दूसरे स्कूल जाता था, मेरे साथ नहीं जाता था। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड डिड नॉट पे मच अटेंशन टू द लार्ज काउ, मैं जा रहा था, आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस से घर जा रहा था, पर मैंने एक गाय थी उसको ज्यादा वो नहीं दिया, देखा नहीं। दैट वॉज मूविंग लेजरली थ्रू द क्राउड, वो आराम से जा रही थी, ठीक है, नॉजिंग अराउंड द वेजिटेबल स्टॉल्स के आसपास। अ साइक्लिस्ट केम डाउन द रोड, एक साइक्लिस्ट आया, वो अच्छे से साइकिल चला रहा था। पेडेस्ट्रियन स्कैटर्ड, आई फाउंड माई सेल्फ बिसाइड द काउ, मैं एकदम काउ के पीछे आ गया। इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीच में। द साइक्लिस्ट वॉज फेस्ड विद द चॉइस ऑफ कोल्डिंग ईदर विद मी और विद द काउ, साइक्लिस्ट का जो फेस था, या तो वो उसको चूज करना था या वो मेरी तरफ हो जाए या काउ की तरफ, उसने मेरी तरफ आना चूज किया। यू क्लम्सी फैलो, आई क्राइड, मैंने चिल्ला के बोला, क्या तुम कर रहे हो हैं। पिकिंग माई सेल्फ अप फ्रॉम द ग्राउंड वाइल द काउ स्टार्टिंग सॉरोफुली एट मी, मैं एकदम गिर गया और गिर के मैंने अपने आप को उठाया और मैंने उससे चिल्लाकर बोला, क्या कर रहे हो तुम क्लम्सी फेलो, नालायक लड़के, क्या कर रहे हो ये। आई एम सॉरी सेड द साइक्लिस्ट, उसने मुझे सॉरी बोला। अ बॉय ऑफ माई एज आई कुडंट हेल्प इट, वो लड़का था कैसा, मेरी ही एज का, मेरा हम उम्र एक लड़का था जो साइकिल पे था। वाई नॉट, वाई नॉट, वाई नॉट, बिकॉज if I had not bumped into you, I would have bumped into the cow, उसने कहा अगर मैं तुम में नहीं मारता तो मैं काऊ में मार देता ये साइकिल देके। As he saw me growing indignant, he hurried on, ठीक है, जैसे ही उसने मुझे देखा कि मैं बहुत गुस्से में हो रहा हूं,
I would have bumped into the cow. Then as he saw me growing indignant, he hurried on. Please don't misunderstand. Please गलत मत समझना मुझे. It is not that I prefer the cow to you. ऐसा नहीं है कि मैंने cow की जगह तुम्हें prefer किया है. But I might have broken my head if I had banged into her. अगर मैं उसमें टक्कर मारता तो मेरा सर टूट चुका होता अब तक. खरा दर्द उसमें प्रॉब्लम हो जाती कुछ. शी इज एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट. वो इमूवेबल ऑब्जेक्ट है. अगर मैं उसे मूव करने को कहूंगा, हॉर्न बजाऊंगा या उसके पास जाके साइकिल लेके जाऊंगा, वो मूव नहीं करने वाली. आई कुड थिंक ऑफ नो रिजॉर्ट. A few weeks later I saw a boy again. कुछ हफ्ते बाद मैंने उसी लड़के को दोबारा देखा. बट वी वर ऑन अ लॉनली रोड दिस टाइम. इस बार हम खाली रोड पर थे. विथ प्लेंटी टू स्पेस, अवॉइड बम्पिंग इनटू ईच अदर. एक दूसरे के ऊपर हम घुसने नहीं वाले थे. बहुत स्पेस था रोड पे, ब्रॉड रोड थी. बट सीइंग अ फैमिलियर फेस, द बॉय swerved his bicycle dangerously to the edge of the road and almost swept me off my feet. उसने एकदम रोड के किनारे पे रोक ली और बस मेरे पैरों पर चढ़ने ही वाला था. ओह हेलो देयर, ही सेड, मेकिंग श्योर हिज साइकिल हैड नॉट बीन डैमेज्ड. उसने हेलो बोला, से ही सेड हेलो, और उसने सबसे पहले अपनी साइकिल देखी. मेरी साइकिल तो ठीक है ना. मतलब वो अपनी साइकिल को इतनी केयर करता था कि पहले वो अपनी साइकिल देखने लगा. एंड हाउ आर यू, उसने पूछा, तुम कैसे हो. मैंने कहा आई एम फाइन. आई सेड प्रिपेयरिंग टू कंटिन्यू माई वॉक. मैं अपनी वॉक में जारी रहा. मैं वॉक कर रहा था. मैं जारी मतलब चलते चलते मैं उसे जवाब दे रहा था, उसकी बात को कंटिन्यू कर रहा था. आई एम फाइन. द बॉय गॉट इनटू स्टेप विद मी. जो बॉय था वो जो है वो मेरे पास आने लगा. एंड परस्यूड द टॉपिक ऑफ माई वेलबींग. फिर वो मेरे बारे में सोचने लगा. आई डिड नॉट हर्ट यू दैट डे इन बाजार. और वो उस दिन के बारे में बात करने लगा जिस दिन वो मेरे में बम्प करी थी उसने अपनी साइकिल, कि तुम्हें हर्ट नहीं हुआ था. आई होप यू वर फाइन. यू वर गोइंग टू अदर वे जस्ट नाउ वरंट यू. क्या तुम दूसरी तरफ जा रहे हो. आई सेड वेरी रूडली. ही लुक डिसअपॉइंटेड बट देन ही स्माइल्ड. वो बड़ा निराश फील कर रहा था और फिर वो हंसा. देयर वॉज समथिंग अबाउट हिज स्माइल दैट मेड मी स्माइल टू. उसकी स्माइल में कुछ ऐसा था कि मुझे भी हंसी आ गई. जैसे ऐसे कभी होता है ना कि हम किसी को देखते हैं और वो हंसता है तो हम भी हंस देते हैं उसको देख के. वो इतनी जोर की हंसता है. तो उसने मुझे भी हंसा दिया और उसने बोला, डोंट बी सो एंग्री, तुम नाराज मत हो. उसने कहा, मैं नाराज नहीं हूं. आई सेड प्लीज डोंट बी हर्ट. उसने कहा, तुम हर्ट भी मत हो. मैंने कहा, मैं हर्ट भी नहीं हूं. ठीक है. दिस हैट, प्लीज डोंट बी अ स्नोब. अब उसने बोला कि तुम वो मत बनो. अब उसने पहले तो उसने पूछा कि तुम हर्ट तो नहीं हो. फिर उसने कहा तुम ज्यादा प्राउड ही मत बनो. बस यहाँ उसे गुस्सा आ गया. दिस हैज मोर इफेक्ट. द बॉय वॉच्ड मी विद एस्टोनिशमेंट एज माई चीक्स ग्रू रेड. और मेरे फेस पे एक गुस्सा सा आ गया और मेरे चीक्स रेड हो गए. मैंने बोला, आई एम नॉट अ स्नोब, मैं प्राउडी नहीं हूँ. आई सेड. द बॉय ग्रिन्ड एट मी. वो मेरे को देखता रहा, घूरता रहा. नाउ यू आर एंग्री एंड हर्ट. उसने कहा, अब तुम गुस्सा भी हो और हर्ट भी हो गए हो. सो यू आर नॉट अ स्नोब. गुड. ओह, तुम प्राउडी नहीं हो. कम एंड हैव सम चाट विद मी. चलो तो मेरे साथ कुछ चाट वाट खाते हैं. चलो. आपने कभी चाट खाई है. चाट यहाँ पर लाइक जो फ्रूट चाट होती है ना, उसकी बात हो रही है. स्टैंडिंग ऑफ द रोड वॉज अ स्मॉल वुडन शॉप. वहां पर एक वुडन शॉप थी, ड्रेप्ड विद सैकिंग. आई हेजिटेटेड इन द एंट्रेंस. मैं बहुत जाते हुए बड़ा अजीब फील कर रहा था. सस्पिशियस ऑफ वाइल्ड स्वीट स्मेल. वहां पर एक स्वीट स्मेल आ रही थी, नमकीन मीठा मिक्स वाली स्मेल. ऑफ मुरमुर ऑफ अनफेमिलियर वॉइसेस. बड़ी आवाजें हो रही थी वहाँ. आई न्यू नथिंग अबाउट द स्ट्रेंजर हु हैड इन्वाइटेड मी. मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था जो मुझे इनवाइट कर रहा था. चलो आओ मेरे साथ चाट खाओ. बट टू हैव रिफ्यूज्ड वुड हैव बीन टू इनवाइट फर्दर डिरीजन. अगर मैं उसे अब मना करता तो फिर से मैं एक डिरीजन बन जाता. क्या बन जाता. उपहास का पात्र या हंसी का पात्र. फिर से वो मुझसे कहता कि यू आर सो प्राउडी, यू आर स्नॉब. I followed the boy into the shop. मैं चला गया उसके साथ. I discovered that chaat was spiced and sweetened, mixture of different fruits, vegetable potatoes, guavas, bananas, oranges, all sliced up, served on the broad green leaves, and eaten with the help of toothpick. So it was an unusual and exciting flavor. You like it? asked the boy.
मैंने देखा कि चाट कैसी थी, खा के देखा, बड़ी स्पाइसी थी और स्वीट मिक्स थी, मिक्सचर ऑफ स्वीट एंड स्पाइसी। डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उसमें डले हुए थे, लाइक पोटैटोज, गुआवाज, बनानाज, ऑरेंजेस, ठीक है, सारे के सारे डले थे। ग्रीन लीफ पे वो सर्व करे जा रही थी और एक टूथपिक की हेल्प से हम उसे खा सकते थे ऐसे करके। इट हैज़ एन अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग फ्लेवर, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर था। यू लाइक इट? आस्क्ड द बॉय, बॉय ने बोला तुम्हें पसंद आई? तो इसने बोला, नरेटर ने, हाँ आई थिंक सो, आई सेड। नाउ इट्स होली टाइम। डोंट यू थिंक सो, ही सैड, जस्ट लाइक इट। ऐसा सोचो मत, तुम इसे पसंद ही करो, ये अच्छी है, टेस्टी है, ठीक है, तुम मानो कि ये बहुत टेस्टी है। इज इट बैड फॉर द स्टमक? क्या ये स्टमक के लिए अच्छी नहीं है? अनफेमिलियर स्टमक के लिए। अनफेमिलियर मीन्स जो रोज रोज इसे नहीं खाते। सो द बेस्ट वे टू मेक योर स्टमक फेमिलियर टू कीप ईटिंग। तुम अपने स्टमक को फेमिलियर बना लो ये रोज ऐसी चीजें खाने के लिए। ही ऑर्डर्ड मोर इन स्पाइट ऑफ माई प्रोटेस्ट। मैंने मना करा, प्रोटेस्ट मीन्स मना करना, डिनाई करना, इन स्पाइट ऑफ, उसके बावजूद भी उसने दोबारा ऑर्डर कर दी। देन ही सेड, मे आई नो योर नेम? ही सेड, मे आई नो योर नेम? व्हाट्स योर नेम? ही सेड, narrator said Lore. I said and asked him Anil, Anil Kumar. उसने अपना नाम बताया अनिल कुमार। कुमार मीन्स प्रिंस, बट ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ प्रिंस। कुमार का मतलब होता है प्रिंस, बट मैं कोई प्रिंस नहीं हूँ। His black hair was thick and strong. उसके जो ब्लैक हेयर्स थे बड़े मोटे मोटे, बड़े स्ट्रॉन्ग थे। His eyes was a deep brown. उसकी आईज कैसी थी? डीप ब्राउन। ही वॉर अ थिन ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट कॉटन शर्ट। उसने एक कॉटन शर्ट पहनी थी, बहुत पतली सी, ब्रॉड वाइट पजामा विद द पजामा, और ऊपर स्लीपर विद लेदर स्ट्रैप्स, लेदर की स्ट्रैप्स थी। वी एट चाट एंड टॉक्ड एंड दैट्स अनिल एंड आई बिकेम फ्रेंड्स। दैट्स हाउ। हमने चाट खाई, बातें करी, और ऐसे अनिल और मैं फ्रेंड बने। वी वुड ऑफन मीट इन द इवनिंग। फिर हम इवनिंग में मिला करते थे और अलग अलग प्लेसेस पे जाया करते थे। अलग अलग प्लेसेस पे हम कुछ कुछ चीजें खाया करते थे। माई स्टमक सून बिकेम एक्यूज्ड टू दैट अनफेमिलियर कुकिंग। इन सब चीजों का मेरा पेट आदी हो गया था अब। वी टुक वॉक्स अक्रॉस द मैदान, a spacious grassy ground always crowded with children and dogs and cows and people making speeches, and on holidays we would cycle out of town into the fields down to the river. हम कहाँ कहाँ जाते थे? हम वॉक करने जाते थे मैदान के आसपास, स्पेशियस जगह पे जहाँ पर बहुत स्पेस हो, ग्रासी ग्राउंड मतलब घास वाला मैदान हो, चिल्ड्रंस हो, बहुत सारे काउज हो, और लोग स्पीचेस दे रहे हो, ठीक है। और हॉलीडेज में हम क्या करते थे? साइकिलिंग करते थे। एज होली नियर्ड, अब होली पास में थी, अनिल बिगेन टू मेक हिज प्रिपरेशन। अनिल को तो अपनी बहुत सारी प्रिपरेशन करनी थी क्योंकि उसे बहुत पसंद था होली खेलना। ही फैशन्ड अ सॉर्ट ऑफ बाइसाइकिल पंप फ्रॉम अ पीस ऑफ बैम्बो। उसने एक बैम्बो के पीस से, ठीक है, एक वो बनाया, एंड ट्राइड इट आउट विद वाटर, और उसको वाटर से ट्राई करा और वो चल पड़ा। यू वुड बेटर गेट आउट ऑफ योर वर्स्ट क्लोथ्स, ही सेड, द कलर वॉन्ट कम ऑफ इजीली। तुम थोड़े से बुरे से कपड़े पहन लेना, गंदे से, जो थोड़े पुराने हो, क्योंकि कलर जल्दी से जाता नहीं है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू प्ले। मैंने कहा तुम मेरे से एक्सपेक्ट मत करो कि मैं खेलूंगा। अच्छा, वाई नॉट? Well, first there are my parents and second there is yourself. You are ashamed to play. अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं चाहते कि तुम खेलो, और सेकंड तुम्हें बहुत शर्म आती है खेलने में। हाँ, ऐसा है क्या? नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं है। आई सेड इट्स नॉट लाइक दैट। यू आर मिसअंडरस्टूड। तुम गलत समझ रहे हो। अनिल पुट हिज हैंड ऑन माई शोल्डर एंड गिव मी अ स्टर्न लुक। उसने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा और मुझे एक कैसा लुक दिया? घूरता हुआ लुक, ठीक है, टफ लुक, काइंड ऑफ, यू कैन से हार्ड लुक। हैव यू फॉरगॉटन दैट अ फ्यू डेज आफ्टर वी मेट आई सेंट यू अ क्रिसमस कार्ड? ये कौन था?
जो लॉरी था ये एक वो था क्रिश्चियन। तो इसने कहा, इसने क्या बोला अनिल ने, इसने बोला कि क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मुझे कार्ड दिया था। दैट्स ट्रू आई सेड, बट यू सेंट इन द फेब्रवरी। उसने कहा तुमने फेब्रवरी में सेंड किया था। वेल आई डिडंट मेट यू इन दिसंबर, जब मैं तुमसे दिसंबर में मिला ही नहीं था तो मैं तुम्हें कैसे इन्वाइट करता क्रिसमस के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें फेब में दिया वो कार्ड। डू यू नो दैट आई पिंच्ड माई फादर बेस्ट ग्रीटिंग कार्ड, मैंने उनका बेस्ट ग्रीटिंग कार्ड लिया, उस पेज को कट किया और उस पर लिख के मैंने तुम्हें दिया। ठीक है, येस आई नोटिस्ड। डिड यू वॉन्ट मी टू थिंक यू बॉट इट योर सेल्फ, तुमने नोटिस किया मैं तुम्हारे लिए लाया। वेल दे आर नॉट अवेलेबल इन फेब्रवरी एनीवे। द पॉइंट इज, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ एग्जैक्टली, आई शेयर योर फेस्टिवल बट यू डोंट शेयर माइन। मैंने तुम्हारा फेस्टिवल शेयर किया पर तुम मेरा फेस्टिवल शेयर नहीं करना चाहते हो। एंड हैविंग बैनिस्ड ऑल आर्ग्यूमेंट, अब इन आर्ग्यूमेंट्स को खत्म करो। ही रिटर्न टू फैशनिंग हिज बैम्बू पंप, उसने अपने पंप को जो उसने बनाया था बैम्बू स्टिक से उसे सजाना शुरू किया। आई हर्ड द शाउटिंग एंड क्लैपिंग, द सिंगिंग एंड बीटिंग ऑफ ड्रम्स। अगेन मैंने क्या सुना, शाउटिंग, क्लैपिंग, सिंगिंग, बीटिंग ऑफ ड्रम्स बजा रहे हैं लोग, खेल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं। आई जम्प्ड ऑफ माई बेड एंड रैन टू द विंडो, मैं अपने बेड से एकदम खड़ा हुआ जंप करके और विंडो की तरफ गया। अ प्रोसेशन ऑफ बॉयज, मतलब एक भीड़ थी, किसकी, गर्ल्स की, बॉयज की और लोगों की, वॉज मूविंग डाउन द रोड, जो रोड की तरफ जा रही थी। दे वर लाफिंग एंड थ्रोइंग कलर्स अबाउट, वो हंस रहे थे और एक दूसरे पे कलर थ्रो कर रहे थे। एंड देयर क्लोथ्स वर रिच शेड्स ऑफ ऑरेंज एंड मूव एंड रेड एंड ग्रीन, और उनके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे जिसमें उनके कपड़े डिफरेंट डिफरेंट हो गए थे, किसी के रेड, किसी के ऑरेंज, किसी के ब्लू, किसी के मूव। डाउन द रोड केम द प्रोसेशन एंड डाउन द रोड केम अनिल विद हिज बाइसाइकिल पंप, और अनिल किसके साथ आया, जो उसने वो बाइसाइकिल का पंप बनाया था ना, उसको लेके वो आया। द प्रोसेशन पास्ड ऑन, और वो भीड़ जाने लगी, बट अनिल लिंगर्ड नियर आर गेट, जो अनिल था वो गेट पर ही खड़ा रहा, जैसे कि चिपक के कह लो। इट वॉज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज हिम, ही वोर ओनली अ लॉइन क्लोथ एंड लुक्ड एन एफिगी सॉरी, वो एक एफिगी लग रहा था, एक मूर्ति लग रहा था, एक स्टैचू लग रहा था, स्टैचू ऑफ ग्रीन लॉर्ड। ठीक है, जैसे कोई भगवान हो ऐसा एक स्टैचू की तरह उसका ड्रेस लग रहा था। माई रूम हैड इट ओन एंट्रेंस एंड आई स्लिप्ड आउट थ्रू द गार्डन, क्लाइम द वॉल एंड जॉइंड अनिल ऑन द रोड। मैं चला गया निकल के बाहर, स्लिपर्स पहन के, मुझे बहुत मन कर रहा था और मैंने जाकर वहां से ज्वाइन कर लिया। अनिल स्माइल्ड अ वाइट स्माइल इन अ ग्रीन फेस, उसका वो पूरा ग्रीन ग्रीन हो रहा था, उसके फेस पे एक स्माइल थी जिससे उसके वाइट दांत चमक रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि ग्रीन फेस पे एक वाइट स्माइल। एंड कवर्ड माई फेस विथ पर्पल पाउडर, देन ही स्क्वाटेड मी विद हिज बाइसाइकिल पंप, ही हैड ब्रॉट अ पंप फॉर मी, वो मेरे लिए भी एक पंप ले आया। ठीक है, और पर्पल पाउडर से उसका फेस जो था वो कवर्ड था। वी जॉइंड द प्रोसेशन, हमने भी भीड़ को ज्वाइन कर लिया। वेंट ऑल ओवर द टाउन शाउटिंग एंड सिंगिंग एंड थ्रोइंग कलर्स, हमने भी एक दूसरे पे कलर्स थ्रो किए। हम भी बाजार में हल्ला मचाने लगे। अक्रॉस द मैदान पेंटिंग द टाउन, हमने हर जगह कलर 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 फैला दिया। एंड व्हेन आई रिटर्न होम इन आफ्टरनून ड्रेंच्ड विद कलर्स फ्रॉम हेड टू फुट, मैं ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक पूरा कलर से पुता हुआ था। जब मैं घर आया और देखा कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए वेट कर रहे थे वरांडा में, ठीक है, वरांडा में वो वेट कर रहे थे। दे डिडंट रिकॉग्नाइज मी एट फर्स्ट, उन्होंने मुझे पहचाना भी नहीं, बट फिर एकदम से उन्होंने जब देखा तो मेरे जो पापा हैं वो एकदम से बहुत तेजी से ऐसे बर्स्ट करके हंसने लगे। वाइल माई मदर टोल्ड मी टू गेट अंडर द शावर इमीडिएटली, मेरी मम्मा ने कहा कि तुम शावर लो इमीडिएटली, बट मैंने सुना वेल आई सपोज ही कांट लुक आफ्टर हिमसेल्फ नाउ, मेरे पापा ने कहा कि वो अपना ध्यान अब खुद रख सकता है। आई हर्ड माई फादर सेइंग वी विल बी हेयर टिल द एंड ऑफ द ईयर एंड इट्स द टाइम ही फाउंड फ्रेंड्स ऑफ हिज ओन एज, हम सिर्फ एक ही साल है यहाँ और अब ये टाइम है कि वो अपने लिए फ्रेंड्स ढूंढे और फ्रेंड्स के साथ रहे और इंजॉय करे। ठीक है,
तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर स्प्रिंग फेस्टिवल। ठीक है, अब हमने इसमें स्प्रिंग फेस्टिवल देखा, और हम बहुत सारे फेस्टिवल्स देखते हैं अपने हिंदूज में, तो हम बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अब देखो, आपने जो वो था लॉरी, उसने फेस्टिवल मतलब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट फिर भी उसने अनिल की इतनी मतलब उसको देखकर इतना अच्छा लग रहा था कि वो इतने अच्छे से सेलिब्रेशन करने वाला था कि उसको देख के उसने फेस्टिवल ज्वाइन कर लिया। उसने भी सोचा मैं भी खेलता हूँ, और उसे बहुत मजा आया, ही एंजॉयड सो मच। तो हमें अपने सारे फेस्टिवल्स का, जो भी हमारे हिंदूज के फेस्टिवल है, उसको एंजॉय करना चाहिए, फुल ऑन एंजॉय करना चाहिए विद आर फ्रेंड्स एंड विद आर फैमिली, जिससे कि हम और क्लोज आ सकें और हमें मिलने का मौका मिले। ठीक है, जिससे हमारा भाईचारा प्रेम बढ़े आपस में। ओके, द चैप्टर एंड आई होप यू आर फाइन। टुडे वी विल स्टार्ट, वी विल मूव फॉरवर्ड in 6th unit, chapter 2nd. It's a poem, In Morning Dew. In Morning Dew, have you ever wondered how it would be a scarecrow? क्या आपने कभी scarecrow के बारे में सुना है? What is scarecrow? Do you know about it or not? Read this poem and find out. इस poem में हम ये find out करेंगे what is scarecrow. आपने देखा है, जब आप किसी खेत में जाते हैं तो वहां पर एक पुतला होता है, एक स्टैचू होता है। फॉर व्हाट पर्पस? वो होता है कि जिससे जो एनिमल्स, बर्ड्स जो हैं, वो उनकी जो फसल है उसको खराब ना करें, या कम से कम खराब करें। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएंगे एनिमल्स, बर्ड्स, बट कम आएंगे। उन्हें ऐसा लगेगा, वो उनको डराने के लिए ही खड़ा होता है एक स्टैचू, एक पुतला। ठीक है, तो यहाँ पर उस स्टैचू का बारे में बताया गया है कि वो क्या फील करता है। ठीक है, भले ही वो एक स्टैचू है, ही इज नॉट एन ह्यूमन बीइंग, बट स्टिल हम नेचर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पोइट नेचर के बारे में बात करता है। द पोइट जो है वो कौन है? केकी एंड दारूवाला। ठीक है, केकी एंड दारूवाला एक नेचर से रिलेटेड पोइट है, और वो इसके बारे में बताता है कि स्केयर क्रो क्या फील करता है, व्हाट ही फेल्ट एक्चुअली, दो ऑल्दो ही इज अ स्टैचू ओनली, बट ही फेल्ट समथिंग। वो खड़ा रहता है सुबह शाम, धूप में, बारिश में, कभी भी हिलता नहीं है वहां से। तो व्हाट ही फेल्ट एक्चुअली। इन मॉर्निंग ड्यू द स्केयर क्रो कॉम्स हिज हेयर। सबसे पहले तो क्या होता है, रात में वो रेस्ट करता है, क्योंकि रात में कोई भी खेत में आता नहीं है, कोई भी उसे खराब करने नहीं आता, तो रात में वो रेस्ट करता है, और मॉर्निंग में वो फ्रेश उठता है, एकदम फ्रेश। ही वोक अप इन द मॉर्निंग। इन मॉर्निंग ड्यू द स्केयर क्रो, जब कुछ ड्रॉप्स होती हैं, बूंदे, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, you can say small drops of water, the scarecrow combs his hair. scarecrow अपने हेयर को कॉम्ब करके अच्छे से तैयार हो जाता है। in morning light the scarecrow looks up so spry. अब वो कैसा दिख रहा है मॉर्निंग में? रात में वो सो रहा था, आराम कर रहा था, अब वो बहुत कैसा दिख रहा है? एकदम अलर्ट, कि बस अब कोई आ जाओ, अब तो मैं देख लूंगा। अब वो बहुत अलर्ट दिख रहा है। मॉर्निंग लाइट द स्केयरक्रो लुक सो स्प्राई, यू नो ही इज हैड अ गुड नाइट स्लीप। उसको बहुत अच्छी स्लीप, बहुत अच्छी नींद आई थी लास्ट नाइट, और नाउ ही इज फ्रेश इनफ टू वॉच ऑन द बर्ड्स एनिमल्स, टू वॉच ऑन द बर्ड्स एनिमल्स। ही इज नाउ इन अ फिटर स्टेट। अब वो कैसी स्टेट में है? फिटर स्टेट, टू कीप वॉच ऑन समथिंग, जैसे मतलब एकदम गिद्ध की नजर, जिसे कहते हैं गिद्ध की नजर, उसमें अब वो उसका है पूरा दिमाग, अच्छे से वो कर सकता है। ऑन शाउटिंग मंकी एंड पॉर्क्यूपाइन। ठीक है, मंकी पे भी वो शाउट कर सकता है, और पॉर्क्यूपाइन, पॉर्क्यूपाइन क्या होता है? एक एनिमल्स होते हैं जो रेड की तरह होते हैं, लाइक एन रेड, और वो भी हमारे खेत को खराब कर देते हैं। ही गेट्स टू सी एवरीथिंग ऑल द टाइम। अब वो हर चीज को देखता रहेगा, एक्सेप्ट हिज शेडो विच लेजेस अबाउट। जो उसकी शेडो है वो उसको दिखाई नहीं देती, और इनफैक्ट वो दोपहर के बाद तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि इवनिंग तक होते होते उसकी शेडो उसको दिखाई नहीं देती, बाकी सब उसको दिखाई देता है। इवनिंग तक उसकी शेडो क्या हो जाती है? एंड एक्सटिंग्विश हो जाती है, सडनली गायब हो जाती है। तो what we read in the first stanza, in morning dew the scarecrow combs his hair, in morning light the scarecrow looks so spy.
You know he had a good night's sleep. He is now a fitter state to spy. On shouting monkeys and porcupine, he get to see everything all the time, except his shadow which lazes about till the evening snuffs the fellow out. ओके तो इस स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा कि वो क्या फील कर रहा है, वॉट ही इज फीलिंग एक्चुअली. ही इज मतलब वो नाइट की स्लीप लेके अब वो मॉर्निंग में फ्रेश है. अब उसकी नज़र जो हो गई है कि स्पाई की नज़र हो गई है जो बिल्कुल किसी को भी एकदम कैच कर सकता है, पकड़ सकता है. ठीक है, ही इज नाउ इन अ फिटर स्टेट टू स्पाई. एकदम पकड़ने की अच्छे से गिच की नज़र उसकी हो गई है और वो अलर्ट है. अब नाउ ही इज वेरी अलर्ट. ही गेट्स टू सी एवरीथिंग ऑल द टाइम. अब वो सब कुछ देख सकता है ऑल द टाइम और उसको किसी की भी नीड नहीं है. अब वो सब पे नजर बनाए रखेगा. ठीक है. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेंजा वी रीड द पोम. Whether he sees the season come and go is a thing you and I may never know. But busy as he is, he keep an eye on all the bird traffic passing by. Some question always bother him, how seasons come and go. The way the season to and fro, he doesn't know who is getting in, summer, autumn or the snow. वो देख रहा है कि कौन सा सीजन आ रहा है, वो एकदम पता ही नहीं कर पा रहा. वेदर ही सीज द सीजन कम एंड गो, वो देखता है कि कौन सा सीजन आ रहा है और कौन सा सीजन जा रहा है. इज अ थिंग यू मे एंड आई नेवर नो, उसे पता ही नहीं चलता. वो सोचता है कि पता नहीं कौन सा सीजन आने वाला है, अब कौन सा सीजन आएगा. इतना बिजी वो रहता है नजर रखने में अपने खेत पे कि उसे कुछ नहीं पता चलता कि अब कौन सा सीजन आ गया. कभी बारिश आ जाती है, कभी धूप आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी ठंड हो जाती है. सम क्वेश्चन ऑलवेज बॉदर हिम, कुछ क्वेश्चंस उसे हमेशा बॉदर करते रहते हैं. मतलब उसके माइंड में हमेशा वो क्वेश्चंस चलते रहते हैं, मूव ऑन करते रहते हैं. हाउ सीजन्स कम एंड गो, कैसे सीजन आते हैं और कैसे चेंज हो जाते हैं और कैसे चले जाते हैं. द वे द सीजन टू एंड फ्रो, टू मूव बैकवर्ड फॉरवर्ड, मतलब कभी सीजन कभी कोई होता है, कभी कुछ होता है. ही डजंट नो हु इज गेटिंग इन, उसे यही नहीं पता होता कौन सा सीजन अब आने वाला है, समर आने वाले है, ऑटम आने वाला है या स्नो होने वाली है. उसे कुछ आइडिया नहीं रहता. तो वो इन बातों में थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है. समथिंग ही शुड श्योरली नो, उसे लगता है कि ये उसे पता होना चाहिए पर स्टिल उसे ये पता नहीं होता. तो बड़ा वो कंफ्यूज रहता है इस चीज में कि उसे क्यों नहीं पता कि कौन सा सीजन आ रहा है और कौन सा जा रहा है. वेदर ही सीज द सीजन कम एंड गो, अब वो देखना चाहता है कौन सा सीजन आएगा और कौन सा चला गया. इज अ थिंग यू एंड आई नेवर नो, वो कहता है कि ना ये तुमको पता ना ये मुझे पता कि अब कौन सा सीजन आएगा. बट बिजी एज ही इज, ही कीप्स एन आई ऑन ऑल द बर्ड ट्रैफिक पासिंग बाय. उसकी नजर कहाँ होती है कि कौन सी बर्ड आ रही है, कौन सी बर्ड्स आ रही हैं, कौन सा एनिमल आ रहा है, और उसकी नज़र ऑल द टाइम वही होती है. सम क्वेश्चन ऑलवेज बॉदर हिम, कुछ क्वेश्चन उसके माइंड में हमेशा चलते रहते हैं और उसे परेशान करते रहते हैं कि कैसे सीजन आते हैं और कैसे जाते हैं. द वे द सीजन टू एंड फ्रो, कैसे सीजन आते हैं, आगे बढ़ते हैं और कैसे पीछे जाते हैं. ही डजंट नो हु इज गेटिंग इन, उसे नहीं पता होता कि कौन सा सीजन आने वाला है, समर, ऑटम या स्नो. समथिंग ही शुड श्योरली नो, कुछ तो है जो उसे पता है. ही नोज ही शिवर्स इन द कोल्ड, उसे एक चीज पता है. क्या पता है उसे? कि वो ना जब ठंड होती है तो उसको शिवरिंग होती है, उसको ऐसे कपकपी छूटती है. ठीक है, तो उसे पता चल जाता है कि ये है विंटर सीजन. ठीक है, तो उसको वो पता चल जाता है कि अब मेरे को ठंड लग रही है तो कुछ बर्फ जैसा फील कर रहा हूं मैं. ठीक है, शिवर्स मीन्स कपकपाना या कांपना. शिवर्स इन द कोल्ड एंड इन द समर ही विल फ्राई, और समर में क्या हो जाता है, जैसे हम तल भुन जाते हैं ऐसे ही वो भी भुन जाता है, तल जाता है, फ्राई हो जाता है. डू सीजन्स कम अप फ्रॉम द ग्राउंड, क्या सीजन नीचे से आते हैं, ऊपर से आते हैं, कहाँ से आते हैं, और डू दे ड्रॉप डाउन फ्रॉम द स्काई, या वो स्काई से ऐसे गिरते हैं. आर क्वेश्चंस दैट हैव बॉदर हिम, ये क्वेश्चंस उसे हमेशा परेशान करते हैं. आंसर्स डू नॉट ड्रिबल इन, जिनके आंसर्स वो फाइंड आउट कर ही नहीं पाया अभी तक.
He knows he shivers in the cold, and in summer he will fry. Do seasons come up from the ground, and do they drop from the sky? Our question they have bothered him, answer do not trouble him. So keep questions out and answers in. He bolts his upper story door. Then he wonders why on the earth his head goes round in circles for, while seasons circle round and round like oxen on a threshing floor. उसके माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं, कैसे? सो कीप क्वेश्चन आउट एंड आंसर्स इन. क्वेश्चंस बाहर निकल गए और आंसर्स आ गए उसे. ही बोल्ट्स हिज अपर स्टोरी डोर. उसने अपने जो माइंड है उसको बंद कर दिया, ऐसे करके कहते हैं ना, जैसे चटकनी लगा देना, बोल्ट है ना, उसने उसे क्लोज कर दिया काइंड ऑफ, ठीक है, बोल्ट. देन ही वंडर्स व्हाई ऑन द अर्थ. अब वो शॉक्ड है कि क्यों अर्थ पे क्यों होता है ऐसा. हिज हेड गोस राउंड इन सर्कल्स फॉर. उसका जो सर है वो गोल 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 घूमता है, कभी कोई सा सीजन आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है. वाइल सीजन सर्कल्स राउंड एंड राउंड. सीजन ऐसे करके बदलते हैं, जैसे एक सर्कल होता है ना, ऐसे कि पहले समर आया, फिर ऑटम आया, फिर विंटर आया, स्प्रिंग आया, ऐसे करके सीजन्स राउंड एंड राउंड घूमते रहते हैं. हिज हेड गोज राउंड इन सर्कल्स फॉर व्हाइल सीजन सर्कल्स राउंड एंड राउंड लाइक ऑक्सन, जो बैल होती है, ऑन आ थ्रेशिंग फ्लोर. थ्रेशिंग फ्लोर मतलब जो जिसपे जैसे वो होता है ना, घास काटते हैं जिसपे, तो वो थ्रेशिंग फ्लोर होता है, ठीक है. उसको हम क्या बोलते हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि कोई बैल आ गया है उस पे, घास के उस पे चलने, कट करने के लिए, उसको घास को कट करने के लिए, ठीक है. तो सो कीप क्वेश्चन साउंड एंड आंसर्स इन. ही बोल्ट्स हिज अपर स्टोरी डोर. देन ही वंडर्स व्हाई ऑन अर्थ हिज हेड गोस राउंड इन सर्कल्स फॉर, while seasons circle round and round like oxen on a threshing floor. ठीक है. सो हमने ये पढ़ी केतकी एंड दारूवाला की एक पर्सन की स्टोरी. मतलब एक स्टैचू था वो, वैसे अ फिगर ऑफ अ पर्सन इन ओल्ड क्लॉथ्स, और वो हमेशा कैसे कपड़ों में रहता है, बड़े पुराने से कपड़ों में रहता है. सेटअप इन अ फील्ड. फील्ड में उसे सेटअप किया जाता है स्टैचू को, क्या करने के लिए? फ्राइटन करने के लिए, डराने के लिए. किसको डराने के लिए? क्रोज एंड अदर अवे फ्रॉम क्रॉप्स. क्रो और एनिमल्स और बर्ड्स सारे के सारे जो हैं वो क्रॉप से दूर रहे. तो उसकी हमने एक कल्पनात्मक बात करी है कि वो ऐसी 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 कल्पना कर रहा है. एक्चुअल में ही इज अ स्टैचू ओनली, बट वो कल्पना कर रहा है कि यार मैं उठता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ, फिर मैं धूप में, बारिश में, हर चीज़ में यहाँ खड़ा रहता हूँ, और मुझे ये समझ नहीं आता ये सीजन चेंज क्यों होते हैं, और होते हैं तो कैसे होते हैं, गोल 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 घूमते हैं, ऊपर से आते हैं, स्काई से आते हैं, अंडरग्राउंड से आते हैं, कहाँ से आते हैं. तो वो ये सब बारे में सोचता रहता है. तो हमने इस पोम में ये देखा कि स्केयर क्रो कैसा होता है और वो क्या सोचता है, वो क्या फील करता है. देखो, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसके बारे में भी हम पोइट इमेजिन कर रहा है कि वो क्या फील करता है. वो हर टाइम वहाँ खड़ा रहता है, बोर होता रहता है, और वो क्या, व्हाट ही इज एक्चुअली फीलिंग. ठीक है, उसके सामने भी धूप बारिश जैसे हमारे सामने आता है, सब आता है, तो वो क्या फील करता है. तो इसकी एक कल्पनात्मक बात पोइट ने बताई है हमें. ठीक है, इस स्टोरी में, इस पोम में हमने यही पढ़ा कि केकी एंड दारूवाला ने कैसे इसकी जो इमेजिनेशन है उसको इसमें इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है. ओके, the nice poem it was. Okay guys, chalo, we will see you in the next class with a one new story of your 7th unit. Okay, bye bye class for today. We will see you in the next class. Bye bye.